Now, welcome to San Francisco Alinagar online classes. Now, this class is for class 8th and 7th, algebraic expression, because this topic is same in both classes 8th and 7th. Now, we are going to start algebraic expression. Now, what is algebraic expression? Algebraic expression, the expression which contain variable and constants and some basic operational symbols. This is called the algebraic expression. Like this type of symbol: subtraction, addition, subtraction, multiplication, and division. The combination of variable and constant and some basic symbol. This is called the algebraic expression. Like example is, suppose 3x plus 5y plus 2. This is the algebraic expression. Now, this is the constant and this is x is called the variable. This is constant, variable and constant. This is called simply this is called the constant. This is variable, constant, variable, constant, and this is operational symbols. Now, algebraic expression which contain variable and constant and some basic operational like addition, subtraction, multiplication and division. Now this is the example: 3x plus 5y plus 2. Now in this 3 is the constant value, x is the variable value. Now this is 5 is also called a constant value, y is the variable value, and this is called the constant value. Now we write this. Now the simple equation is, algebraic expression is 3x plus 5y plus 2. This is called an algebraic expression example. Now, what is variable? Variable is not a fixed value, is called variable. Not a fixed value is called a variable. It is also called it contain various value. It contain the various value. Like example, x, y, z, a, B, C, D, M, N, anything. Now, we put the value like this: x, y, z, a, B, C, D, M, N, O, P in a algebraic expression. This is called the variable. This is called the variable. Now, constant. It is the fixed value. Like in a numerical value like 5, 6, 7, 1, 2, 9, etc. This is called the constant value. Now, variable is a unfixed value and not a fixed value, because suppose if any equation, example, if any equation 5x, now the value of x is, let's x is equal to 2. Suppose x is equal to 2. Now put the value of x in this equation. Now 5 into x. This equation is written as 5 into x. Now we simply put 5 into 2. This is equal to 10. This is called 10. If in the next term x is equal to, we take 3. Now this is 5 into 3 is equal to 15. At the place of x we put 5 into x. At the place of x we put 3 number. Now this is converted into 5 into 3 is equal to 50. So we told that variable value is every time changeable. ठीक, वेरिएबल वैल्यू x की वैल्यू हम लोग कुछ भी रख सकते हैं. ठीक, जैसे सपोज यहाँ पे हम लोग क्या किया, x इक्वल टू 2 रखा. दिस 5 इंटू 2 इक्वल टू 10. यहाँ पे हमने क्या किया, x की वैल्यू क्या रखे 3. तो यहाँ पे क्या जो है 15. ना वेरिएबल क्या होता है, जो वेरिएबल होता है वो नॉट फिक्स, वो फिक्स वैल्यू नहीं रहती है. वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वेरियस वैल्यू रख सकते हो. जैसे हमारा x है, x की हम लोग कुछ भी रख सकते हैं. यहाँ पे सपोज हमने 2 रखा, यहाँ पे हमने क्या किया 3 रखा. ठीक, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, जैसे ये इक्वेशन है, इसमें ये क्या हमारा 5 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, ये क्या है, वेरिएबल वैल्यू है. नाउ वी राइट एनी सिंपल इक्वेशन लाइक algebraic equation like this is x, y, z, so on, and this is 1, 2, 3, 4, 5 and so on. Now example, a algebraic equation
x 5x. Now this is a simple algebraic expression 5x. Now this value is called the constant value and this value is called the variable value. This value is called the variable value. Okay. Now come to next topic, terms. Terms are added from the expression. Terms are two types, positive and negative. Terms is the two types, positive and negative. Now various part of the algebraic expression which are separate by the sign. जो आपका क्या होता है algebraic equation रहता है, जैसे सपोज ये एग्जांपल है 3x plus 5y, कोई एग्जांपल हमारा। देखिए इसमें टर्म्स क्या करता है, सिंपल टर्म्स में ये कर सकते हैं, जो ये क्या होता है इसमें दो सिंबल्स की यूज होते हैं, पॉजिटिव सिग्नल एंड नेगेटिव सिग्नल सिंबल्स के हम लोग क्या करते हैं यूज करते हैं। ये सिंबल्स की हेल्प हम लोग क्या करते हैं, उसको सेपरेट सेपरेट पार्ट में क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। नाउ दिस इज कॉल्ड द टर्म्स। नाउ इन दिस इक्वेशन वन टर्म्स single terms, so this is a single terms. Okay, now in this example देखिए एक यहाँ पे हमारा क्या है, दिस इज योर फर्स्ट टर्म एंड दिस इज योर सेकेंड टर्म। ओके, नाउ दिस इज योर फर्स्ट टर्म एंड दिस इज योर सेकेंड टर्म एंड दिस इज कॉल्ड टू टर्म्स। इसमें कितने टर्म्स है हमारे, टू टर्म्स है। सपोज अनदर एग्जांपल 3x plus 5y plus 2. Now in this equation, now this is first, second and third. Three terms are present in this equation. First, second and third. Total 3. Now another example is like this, 5xy minus 3x minus 2. Now in this equation how many terms? First, second and third. Three terms are present. In this equation, three terms also. Okay. Now terms एक बार और समझिए क्या होता है। टर्म्स क्या करता है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइड से क्या करते हैं, हम लोग इसको इंडिकेट करते हैं। ठीक है, ये टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये क्या करता है, जो हमारे इक्वेशन होती है उसको डिवाइड करता है, कितने पार्ट में, सेपरेट सेपरेट पार्ट में क्या करता है, डिवाइड करता है। जैसे इस इक्वेशन देखिए, ये क्या है, एक सिंगल है। ठीक है, इसमें क्या है, कांस्टेंट एक वेरिएबल है, बट ये क्या है, इसमें एक सिंगल ही है टर्म्स है। ठीक, इस वाले इक्वेशन देखिए, एक 3x प्लस 5y, जो ये प्लस लग गया है, इसके आगे भी प्लस का सिंबल है, क्योंकि हम लोग आगे लगाते नहीं, ये सिंपल एक प्लस का साइन है। ये देखिए, एक प्लस यहाँ पे, एक प्लस यहाँ पे, टू टर्म्स है। ना इस एग्जांपल देखिए, एक प्लस का साइन है, एक नेगेटिव साइन है, एक नेगेटिव साइन है। ठीक, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। सिंपल में ये क्या कर रहा है, थ्री टर्म्स में इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। दिस इज योर फर्स्ट टर्म, यहाँ से यहाँ तक कल एक आपका फर्स्ट टर्म है, दिस इज सेकेंड टर्म एंड दिस इज ए थर्ड टर्म। ये किसके द्वारा सेपरेट हो रहे हैं, आइदर पॉजिटिव साइन आइदर नेगेटिव टर्म। देखिए ये जो लिखा है 5xy, इसको हम लोग क्या करते हैं, एक पॉजिटिव इसके आगे होगा। ठीक, फर्स्ट टर्म हो गया। जहाँ ये नेगेटिव आ गया, ये क्या कर रहा है, एक सेकंड टर्म को क्रिएट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, थर्ड टर्म को क्रिएट कर रहा है। ओके, नाउ आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट है, ये होता है हमारा टर्म्स होते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म, और ये इक्वेशन जैसे क्रिएट करते सकते हैं। नाउ हम लोग आते हैं फैक्टर। फैक्टर क्या होता है, the multiplication of variable and constant is called the factor's value. Multiplication of variable and constant is called the factor value. Now suppose this equation is 3xy. An equation is given. Example. An equation is given 3xy. Now in this equation, this is multiplication of 3 into y into y, 3 into x into y. Now the factor is multiplication of variable and constant, variable and constant। देखिए ये क्या है, 3 का मल्टीपल 3 मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई y, 3 into x into y, this is called the 3xy, it is written as 3xy. Now this is called the factor value. This is called the factor value. Now another example of factor value is, suppose
Now this. In this factor value, only one terms is present. In this factor value, two terms. Now देखिए ये क्या है, 3 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस 2 into x. This is called a factors value. This is called a factors value. Now, next topic we are going to start the next topic. फैक्टर वैल्यू समझ में आया? देखिए क्या करते हैं, फैक्टर वैल्यू होता है क्या है, जो वेरिएबल एंड कांस्टेंट उनके मल्टीपल से क्रिएट होता है, ठीक है। जैसे इसमें क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, 3 इज द कांस्टेंट वैल्यू एंड एक्स वाई इज द वेरिएबल वैल्यू। इन सब से कॉम्बिनेशन से यानी इन सब के मल्टीप्लिकेशन जो वैल्यू क्रिएट होती है, दिस इज कॉल्ड द फैक्टर्स वैल्यू ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन। Now next topic is coefficient. Coefficient. The product of two other factors is called the coefficient value. Product of two other factors value is called the coefficient value. Product of two other factors value is called product of two other factors is called the coefficient value. Now suppose देखिए इसमें हमारा क्या होता है, एक न्यूमेरिकल फैक्टर होता है, एक वेरिएबल फैक्टर होता है, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ फैक्टर्स हम लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जैसे न्यूमेरिकल फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर। अगर हमको न्यूमेरिकल फैक्टर फाइंड करना है, किसी न्यूमेरिकल फैक्टर की वैल्यू बताना है, the numerical factor of a variable terms is called coefficient. The numerical factors of variable terms is called its coefficient. Now suppose example equation is, suppose an example is 3xy. Now how to write numerical factor of coefficient of coefficient of 3 is x and y. Coefficient of 3 is x and y. ओके, now इसमें देखिए जिससे आपको न्यूमेरिकल वैल्यू को पूछा है, जैसे 3 के बारे में पूछा है, तो जो इससे रिमेनिंग वैल्यू बच जाते हैं, ठीक है, जो वेरिएबल बच गए वही हमारा क्या होगा, या जो भी वैल्यू बच जाता है, ठीक, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ दिस वैल्यू, कोएफिशिएंट ऑफ दिस वैल्यू। सपोज कोएफिशिएंट ऑफ x अगर पूछा है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3y। x के बारे में पूछा है तो x को छोड़ के जो भी दो वैल्यू बचे, जो भी वैल्यू बचती है उनको हम लोग लिख देंगे। अब कोएफिशिएंट ऑफ y पूछता है, y इज 3x। ओके, देखो इसमें क्या होता है, कोएफिशिएंट में जिसके बारे में आपसे पूछेगा, जिस भी अगर न्यूमेरिकल पूछा है, न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग लेफ्ट करके जो भी वेरिएबल बचा है उसको लिख देंगे, ठीक। अगर दूसरा है, अगर आपसे किसी वेरिएबल के बारे में पूछ दिया है, अगर कांस्टेंट उसमें है और एक और वेरिएबल है तो उसको लिख देंगे, ठीक। जैसे इसमें क्या है, x के बारे में पूछा, कोएफिशिएंट ऑफ x इज x का पूछ दिया तो x को हटा के जो भी दो बचे हैं वैल्यू रिमेनिंग है उनको लिख देते हैं, 3 एंड y। अगर y के बारे में पूछता है तो हम 3 एंड x लिख देंगे। दिस इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट वैल्यू। नाउ नेक्स्ट टर्म्स इज लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। Like and unlike terms.
लाइक्स मीन्स है जो सिमिलर टाइप के टर्म्स होंगे, दिस इज कॉल्ड द लाइक टर्म। इसका डिफिनेशन है व्हेन ten terms have the same algebraic expression when terms have the same algebraic expression, this is called the like term. This is called the like term. Now suppose example is एग्जाम्पल इसका कोई भी लिख सकते हैं, जैसे हमारा क्या है 3xy, now next is 5xy, now this and मान लीजिए 7xy, now this is मान लीजिए 8xy. Now this is the similar type of terms, this is the similar type of algebraic expression. Now in this equation, in this algebraic equation, this is constant x y, constant x y, constant x and y, इन सब में क्या कॉमन है x y and x y. So this is called the like term, this is called the like term. अब हम लोग बात करते हैं unlike terms की. Now unlike terms क्या होते हैं? unlike term क्या होता है? When terms have different when terms have different algebraic equation expression, this is called the unlike term. Suppose example is 3xy and 5x. Now in both equation like this a. Now in this 3xy, 5xy and 8xy, both all is same term, like terms, all is the same type of term, algebraic expression, all is the same type of algebraic expression. But here this is the 3xy, this is 5x and this is x, sorry 8. Now this is one constant x and y, here is one constant x and here is only a constant value. Now this is all is called the this is called a like term, this is unlike terms. Okay, now next point is another example is like and unlike terms is, suppose any equation is given, example 5xy plus 5x minus 8xy 2. Now some algebraic equation is given, now find the like term and find the unlike terms. Now like term कौन से, जैसे 5xy and minus xy, इससे हमको साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर हमारा पॉजिटिव साइन है या नेगेटिव साइन, इससे कोई मतलब नहीं, ठीक. बट हमारे क्या जो वेरिएबल है इन दोनों में कॉमन होना चाहिए, वेरिएबल की जो वैल्यू दोनों में क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, लाइक 5xy एंड माइनस 8xy, ठीक. ये हो गया हमारे लाइक टर्म. और अनलाइक टर्म्स जैसे एग्जांपल है this is suppose 5xy plus sorry comma and 5x, this is unlike terms. Another example is unlike terms is another example 5x
minus 2. This is also a unlike terms. Okay. No, like और unlike terms में सिंपल क्या है, इनकी जो एल्जेब्रिक इक्वेशन होना चाहिए वो सेम टाइप के होना चाहिए। एल्जेब्रिक इक्वेशन की जो वेरिएबल कांस्टेंट ये सब में सभी कांस्टेंट, इसमें भी दो है, इसमें भी दो होना चाहिए, इसमें दो, बट वो सेम टाइप के कांस्टेंट होने, अरे वेरिएबल होना चाहिए, जिसमें एक्स वाई है, इसमें भी एक्स वाई है, इसमें भी एक्स वाई है। सो दिस इज कॉल्ड द लाइक टर्म। अनलाइक टर्म में क्या होता है, देखिए इसमें क्या है, एक्स वाई है, बट इसमें एक्स वाई नहीं, मिसिंग है, यहाँ पे वाई क्या है, मिसिंग है। इस वाले इक्वेशन में क्या है, एक्स वाई दोनों मिसिंग है। सो दिस इज कॉल्ड द अनलाइक टर्म एंड दिस इज कॉल्ड द लाइक टर्म। ना इसमें क्या था, हमको सेपरेट करना था, कौन कौन से लाइक टर्म फाइंड करने थे। जैसे लाइक टर्म ये है 5xy, और देखिए ये नहीं लाइक टर्म होगा, बट ये क्या है 5xy से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, तो ये क्या होगा, हमारा लाइक टर्म हो जाएगा। अब इसी तरह अनलाइक टर्म में इन दोनों को, ये 5xy और इन दोनों के बीच में कंपेयर किया जाए तो अनलाइक टर्म है, इन दोनों के बीच में कंपेयर किया जाएगा तो अनलाइक टर्म है, इन दोनों के बीच में कंपेयर किया जाएगा तो अनलाइक टर्म है। ठीक, ये भी लिख सकते हैं हम लोग, -8xy -2, ये भी एक अनलाइक टर्म है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। जो ये टॉपिक आप लोग पढ़ रहे हैं, ये सेम टॉपिक आपको 7th क्लास में भी है और सेम टॉपिक आपके 8th क्लास में है। ठीक, जो 8th क्लास के बच्चे वो क्या करेंगे, जिनके पास बुक नहीं है वो 7th क्लास की बुक उठाइए और उसमें चैप्टर नंबर 6 को ओपन कीजिए, सेम आपको टॉपिक मिलेंगे, सेम यही टॉपिक आपका 8th में है। अभी जो इक्वेशन हम लोग सॉल्व करेंगे उसमें क्या है, आपको कुछ डिफरेंट मिलेगा। ठीक, हाँ, अब हम बनाते हैं मोनोमियल। मोनोमियल टर्म्स में क्या होता है, ऐसे एल्जेब्रिक इक्वेशन जिसमें क्या होता है, वन टर्म्स होते हैं, द एल्जेब्रिक इक्वेशन इन विच ओनली वन टर्म्स। in which one term, this is called the monomial term. Like this example is 3xy. This is the only one algebraic expression, the algebraic expression in which one terms is called the monomial terms. Now binomial. Binomial, two terms are present in the equation like this, 3xy plus x. Now the algebraic expression in which two terms present, like example is 3xy plus x. Now इसमें देखिए, इसमें हमारा क्या टू टर्म्स हैं, सो दिस इज कॉल्ड द बाइनोमियल। एंड बाइनोमियल की एक प्रॉपर्टी और होती है, बाइनोमियल term is always unlike term. Now suppose इक्वेशन इज एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। इक्वेशन हमारा है 3xy प्लस 2xy प्लस x। नो, इसमें देखिए क्या हो रहा है, अभी तो हमको दिखने में आ रहा है कि ये थ्री टर्म्स दिख रहे हैं, ठीक है, बट हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको पहले क्या करना है, हमेशा इसको जो भी बाइनोमियल रहेगा उसको हमको अनलाइक टर्म में कन्वर्ट करना रहता है। देखिए बिना के उसको सॉल्व, ये और ये दोनों कॉमन है, इन दोनों को जब हम लोग सम करेंगे तो हमारा क्या आएगा 5xy प्लस x। अब देखिए ये क्या हो गया, हमारा अनलाइक टर्म में कन्वर्ट हो गया, सो दिस इज कॉल्ड द बाइनोमियल टर्म।
दिस इज कॉल्ड द बाइनोमियल टर्म। अब इसमें टर्म्स कितने हैं हमारे, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड, दिस इज फर्स्ट टर्म एंड दिस इज सेकंड। नाउ टू टर्म्स, इसमें कितने प्रेजेंट, टू हमारे कितने टर्म्स है, टू टर्म्स। नाउ लास्ट इज ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल टर्म्स, ठीक है। द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को मैंने शॉर्ट में लिख दिया ए ई, इन विच थ्री terms present, this is called the trinomial terms. The algebraic expression in which three terms are present, this is called the trinomial trinomial. Okay, now इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। इट इज ऑल्सो trinomial term is always unlike terms. ट्राइनोमियल भी जो भी रहेगा वो भी क्या होना चाहिए, अनलाइक टर्म होना चाहिए, ठीक। रीजन क्या, अगर अनलाइक टर्म नहीं रहेगा तो हम लोग इसको सम करेंगे तो सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी मोनोमियल में हो जाएगा, ठीक। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ये भी हमेशा क्या होना चाहिए, अनलाइक टर्म। नाउ एग्जांपल, एग्जांपल जैसे 3xy प्लस 5x प्लस 8, ठीक। ना इसमें देखो, इसमें कितने हमारे टर्म्स है, 1 2 एंड 3 टर्म, 3 ऑल इज द डिफरेंट टाइप ऑफ टर्म। नाउ दिस इज डिफरेंट एल्जेब्रिक इक्वेशन, दिस इज आल्सो डिफरेंट एंड दिस इज आल्सो, बट इन सबको कॉम्बिनेशन से जो टर्म बना हुआ हमारा क्या कहलाएगा, ट्राइनोमियल, ठीक। ट्राइनोमियल टर्म्स। इसमें क्या देखिए, टोटल नंबर्स ऑफ टर्म्स इज 3। अगर सपोज ये एग्जांपल ऐसे रहता, 3x प्लस वाई प्लस 2xy प्लस 3x प्लस 2x प्लस 8। नो अब हम क्या करते हैं, इसको पहले सबको सिमिलर टाइप के जो भी वैल्यू उनको हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं और उसके बाद सॉल्व करते हैं। जैसे ये हो जाता है हमारा 5xy प्लस 5x प्लस 8। हाँ, यहाँ पे भी देखेंगे हम लोग कितने टर्म्स आ रहे हैं इसमें, 3 टर्म। और जो ये टर्म्स है वो क्या है, अनलाइक टर्म्स है। नाउ दिस इज कॉल्ड द मोनोमियल, 1 टर्म्स होते हैं, बाइनोमियल में 2 टर्म्स होते हैं एंड ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होते हैं। बट बाइनोमियल और ट्राइनोमियल ऑलवेज इज अनलाइक टर्म्स होते हैं। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट इज लिटरल। इसमें क्या होता है, लिटरल नंबर्स क्या होता है, द लेटर which are used to represent a numbers. Now literal क्या होता है, literal number क्या होता है, the letter which are used to represent a number, this is called the literal. It is similar to literal are, जो literal value होती है are same as a variable. Now
जैसे हम लोग जो लिटरल आर सेम एज ए वेरिएबल, लिटरल किसकी तरह होता है, वेरिएबल वैल्यू की तरह होता है, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे लिखते थे, सपोज इन एग्जाम्पल 5x हमने लिखा। नो here x is the variable value and this is also known as a literal value। हम इस पर हम लोग पुट करते हैं 5 if x is equal to 2, now this is 5 into x is equal to 5 into 2 is equal to 10। now जो ये आपका क्या है, लिटरल वैल्यू, दिस इज कॉल्ड अ लिटरल वैल्यू ठीक, और वेरिएबल, और इसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे x, जो x हमारा वो क्या है, ये तो लिटरल वैल्यू बोल सकते हैं, ये वेरिएबल वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या है 2 मान लेते हैं, और इधर ये इसकी वैल्यू क्या कर सकते हैं, चेंज मान लेते हैं, x इज इक्वल टू 4। दिस इज लिटरल वैल्यू और वेरिएबल। नो x जो हमारा है वो क्या है, लिटरल वैल्यू है या वेरिएबल है। हाँ, इसको हम लोग आगे इक्वेशन पुट करते हैं, 5x इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इज इक्वल टू कितना रहेगा 20। ओके, ये क्या करता है, जो लिटरल वैल्यू होता है वो किसी नंबर को रिप्रेजेंट करता है, दिस रिप्रेजेंट द नंबर। देखो इसमें क्या है, x की वैल्यू क्या है 4 है, ये किसी नंबर को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। कौन, लिटरल नंबर, यानी लिटरल जो वैल्यू क्या कर रही है, ये वेरिएबल है, वो किसी नंबर को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। नाउ वन स्टेटमेंट इज, लास्ट स्टेटमेंट इज we do not write coefficient of 1 or minus 1। ठीक, हम लोग क्या कर सकते हैं, वी डू नॉट राइट कोएफिशिएंट ऑफ 1 एंड -1। जो 1 होता है और -1 होता है, हम लोग उसका क्या करते हैं, कोएफिशिएंट वैल्यू नहीं लिख सकते। ए लिटरल फैक्ट, रीजन देखिए, एग्जाम्पल हम लोग कोई एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज एग्जाम्पल इज 1x will be written as x। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 1x will be written as x, जहाँ भी हमारा 1x होता है उसको हम लोग किस में लिखते हैं, x में लिखते हैं, या -1x is will be written as -x। okay, now example is another example देखिए, जैसे यहाँ पर हम लोग हैं 5x plus 1y minus 1a, इस टाइप का हम लोग कभी नहीं लिखते हैं, इसको हम लोग सिंपल लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, 5x plus y minus a लिखते हैं, दिस इज योर करेक्ट मेथड। नाउ today's lecture is finished. This is your intro lecture. Tomorrow we going to start the exercise.